Very good morning to all of you. Welcome to your TSN English class. I'm your English teacher, class 11th, and today we'll start our chapter remaining part. That is the summer of the beautiful white horse from your book Snapshot. And students, today we'll start our chapter with this line here or with this paragraph here. My cousin Murad was considered the natural descendant. But before starting with this paragraph, I would like to tell you about something which we have read already in our previous videos. That is, this story is about two Armenian boys, that is Aram and Murad. They were cousins. They belonged to a tribe that was famous for what? For its honesty and truth, or you can say that integrity. Murad stole a beautiful white horse for riding because he is very fond of riding, and he is the craziest boy in the whole tribe, that is Garavolian tribe. They justified it. They didn't steal the horse for money but only for riding. So here the Murad, who is Aram's cousin, he stolen a horse for what? For his passion, or for his love for horse or love for riding. So for that reason he stole horse, and he offered his cousin Aram that if you want to ride the horse, then be quick, and the time of the horse riding is like the time is like 4 a.m. in the morning, and this is like the season of there in the this chapter is like summer season. That is why the name of the chapter is the summer of the beautiful white horse, because in the morning when Aram saw that who is there in the window, who knocks his window, then he peeped out of the window. Then he saw that his cousin bought a horse for him or for ride. So that is the basic idea of the chapter. So students, let's start the chapter from here. My cousin Murad was considered the natural descendant of this man, although Murad's father was Zurab, who was practical and nothing else. That's how it was in our tribe. A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. So here what's there in the paragraph, that Aram is talking about his cousin Murad, that how Murad is considered because of behavior. So here they are talking about what? Behavior. So he's connecting two people's behavior. So Uncle Khusro का जो behavior है, that is like similar to Murad. तो वो मुरैद को कहना चाह रहा है कि वो मुरैद को कंसिडर कर रहा है कि वो अंकल जो हैं या जो अंकल खुसरो हैं उनका डिसेंडेंट है, या वो उनकी पीढ़ी से आया है. ऑल्दो मुराद फादर वॉज जुराब, जबकि या यद्यपि मुराद के जो रियलिटी में फादर हैं वो मिस्टर जुराब हैं. हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जबकि मुराद के जो फादर हैं मिस्टर जुरैब, उनका जो बिहेवियर है दैट इज़ क्वाइट ऑपोजिट फ्रॉम दैट बॉय मुराद, कि उसके वो जितना क्रेजी टाइप का बॉय है उसके फादर उतने ही प्रैक्टिकल और कुछ भी ऐसा वैसा नहीं सोचने वाले हैं. दैट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब. बट ये सब कुछ फादर और ब्रदर या फादर और बेटे के रिलेशनशिप में नहीं आ रहा है. दिस इज़ ऑल अबाउट देयर ट्राइब. ये ऐसा उनका जो ट्राइब है उसमें ही होता आया है. अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश. एक व्यक्ति जो है वो अपने फादर का से उसको केवल फ्लैश मिलता है, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट. लेकिन हमेशा ये नहीं होता कि जो पिता में गुण होते हैं ज़रूरी नहीं है वो सारे गुण बेटे में ही हो. कहीं ना कहीं आपकी ट्राइब का या आपके जो फैमिली में दूसरे मेंबर्स होते हैं उनके भी गुण आप में आ सकते हैं. द डिस्ट्रीब्यूशन मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ. The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant.
तो ही सेइंग दैट उनकी जो ट्राइब है उसके जो लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन या जो बिहेवियर डिफरेंस है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ लाइक यू कैन से दैट नॉट, ये जन्मजात नहीं होते जो गुण होते हैं, ये इंसान में जो है आपके आपके उसमें आपने कौन सी ट्राइब में बर्थ लिया है या आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो किस टाइप के, इट डिपेंड्स अपॉन देम. एंड हियर कैप्रिशियस वर्ड मीन्स वो थोड़े सन की और थोड़े से उनका जो वायलेंट टाइप का बिहेवियर है वो था. वी रोड एंड माई कज़न मुराद सैंग. उसके बाद उन दोनों ने हॉर्स राइड स्टार्ट कर दी और उसके जो उसका कज़न है मुरैद, उसने गाना गाना स्टार्ट कर दिया. फॉर ऑल एनी बडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर at least according to. So he is saying that अरम कि उन्हें ऐसा लग रहा था उस वक्त प्रेजेंट टाइम में जैसे वो लोग खुद जो हैं क्या कर रहे हैं, हॉर्स राइड कर रहे हैं और वो अकेले ही हैं पूरी कंट्री एरिया में या पूरे विलेज एरिया में जो इस हॉर्स राइड को कर रहे हैं. तो उन्हें मतलब क्योंकि कोई भी ये जाने कि वो दोनों ऐसे एरिया में जहाँ वो एक्चुअली बेसिकली योर कंट्री मीन्स लाइक काइंड ऑफ अ विलेज, काइंड ऑफ अ एरिया या देहाती एरिया, जहाँ पे कम से कम उन लोगों के जो कुछ पड़ोसियों के अनुसार वो लोग वहीं के रहने वाले हैं. तो उन्होंने घोड़े को जब तक दौड़ने दिया, वेयर एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू. सो मोर स्टूडेंट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज. सम ऑफ आर नेबर्स वी बिलोंग्ड. सो उनके कुछ नेबर्स जो उनको जानते थे. वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग. सो उन्होंने किसी चीज़ पे, नेबर्स पे, अपने पूरे जो उनका गांव वाला एरिया था उसमें वो सब में किसको घुमाते गए, हॉर्स को राइड करवाते गए. उन्होंने किसी चीज़ पे एज सच इतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं दी. दे ऑल जस्ट बोथ ऑफ देम जस्ट एन्जॉय देयर हॉर्स राइडिंग. एट लास्ट माई कज़न मुराद सेड गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलोन. और फाइनली उसका जो कज़न है मुरैद, उसने उसे कहा अरम को कि प्लीज़ गेट डाउन फ्रॉम द हॉर्स, बिकॉज उसको हॉर्स राइड अकेले करनी थी. अब विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड. और ये सब देख के अरम ने उससे क्वेश्चन किया कि क्या तुम मुझे भी अकेले हॉर्स राइड करने दोगे. दैट इज़ अप टू द हॉर्स, माई कज़न सेड गेट डाउन. और मुरैद ने कहा कि ये सब कुछ मेरे ऊपर निर्भर नहीं करता है कि मैं तुम्हें हॉर्स राइड करवाना चाहता हूँ या नहीं. दैट इज़ ऑल डिपेंड अपॉन दैट हॉर्स. अगर वो हॉर्स तुम्हें अपना फ्रेंड या फेमिलियर हो जाएगा वो तुमसे, देन ही विल अलाउ यू टू सिट ऑन हिज बैक एंड देन यू कैन एन्जॉय द हॉर्स राइड. द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड. तो अरम जवाब में कहता है कि मुझे पता है कि हॉर्स मुझे राइड करने देगा. वी शैल सी, ही सेड, डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स. तो वो कहता है हम ये सब कुछ बाद में देखेंगे और तुम ये भूलो मत दैट जो ये घोड़ा है इसको इससे बिहेव करने का या इससे हाउ टू टैकल द हॉर्स दैट आई नो. वेल आई सेड एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो. तो वो कहता है हाँ तुम्हें घोड़े से बिहेव करने का या हाउ टू हैंडल द हॉर्स, तुम्हें अगर ये सब कुछ पता है देन आई ऑल्सो नो इट, कि मुझे भी ये सब कुछ पता है कि कैसे जो हॉर्स है उनको ट्रीट किया जाता है. फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड लेट अस होप सो. तो वो कहता है कि ठीक है तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं कह रहा हूँ कि हम ये सब इस चीज़ की आशा करता हूँ कि ये घोड़ा तुम्हें अपने ऊपर राइड करने देगा, पर प्लीज़ फॉर दिस टाइम. और फाइनली तुम अभी तो घोड़े से नीचे उतरो, गेट डाउन. ऑल राइट आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन. वो कहता है ऑल राइट मैं नीचे उतर जाता हूँ, बट तुम ये ध्यान रखना कि तुम्हें मुझे भी इस हॉर्स की एक बार राइड करवानी पड़ेगी. I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, Wazir, run. So उसका जो ब्रदर है मुराद, वो घोड़े से नीचे उतरता है और अरम घोड़े से नीचे जब उतर जाता है उसके बाद मुरैद जो है वो घोड़े के साइड एरियाज जो होते हैं बॉडी के, उस साइड एरियाज पे किक करता है अपने हील्स से और घोड़े को ज़ोर से कमांड देता है कि वज़ीर चलो आगे. द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स. जो हॉर्स है वो अपने हिंड लेग मीन्स पीछे के पैरों की तरफ जो है उन पे प्रेशर करके और आगे के पैरों को
ऊंचा उठा के हॉर्स जो है वो ज़ोर से स्नॉर करता है, आवाज़ निकालता है, एंड बर्स्ट इनटू अ फरी ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीस्ट। और अचानक से हॉर्स स्पीड में भागने लगता है, एंड दिस इज़ लाइक लवलीस्ट moment for both of them. Now move on to next page. Thing I had ever seen my cousin Murad race the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch. फिर वो देखता है कि ये जो इतना प्यारा सा मोमेंट क्रिएट हुआ था, आई हैड एवर सीन, तो वो कहता है मैंने कभी देखा नहीं था। आरम एक्सप्लेन कर रहा है, माई कज़न मुराद रेज द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू इरीगेशन डिच। तो उसका जो कज़न है मुरेद, वो घोड़े को वहाँ से कहाँ किस तरफ ले गया, जहाँ इरिगेशन फील्ड्स थे, तो वो ड्राई वाले फील्ड्स थे, ड्राई फील्ड से इरिगेशन फील्ड्स वाले एरिया पे ले गया। क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, और उसने वो जो सिंचाई वाले एरिया के लिए नाली बनाते हैं, उसने घोड़े को जंप करवा के वो भी क्रॉस कर लिया। एंड 5 minutes लेटर रिटर्न ड्रिप्ड वेट, और 5 मिनट बाद जब वो वापस आया तब वो घोड़े के बॉडी से जो है पानी टपक रहा था। द सन वॉज कमिंग अप, नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड। जो है सूरज है वो भी अब ऊपर उठ चुका था, और अब अरम ने कहा कि अब मेरी बारी है घोड़े पे राइड करने की। माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स राइड, ही सेड। वो कहता है, वो घोड़े से नीचे उतरता है, वो आरम को ऑफर करता है, ठीक है इफ़ यू वांट टू राइड तो तुम बैठ जाओ। आई लीव्ड to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. The horse did not move. वो घोड़े के ऊपर बैठा और कुछ ही मोमेंट पे उसने देखा कि सबसे ऑफुल जो फीलिंग है, जो फियर है, जो उसने कभी सोचा नहीं था या उसके साथ ऐसा होने नहीं वाला था, वो हुआ। द हॉर्स डिड नॉट मूव, जो घोड़ा है वो आगे मूव नहीं किया। किक इन टू हिज मसल, माई कज़न मुराद सेड, वॉट आर यू वेटिंग फॉर। तो मुराद ने उसको ट्रिक या हॉर्स को कैसे आगे बढ़ाते हैं ये सिखाया कि अपने जो फीट वाला एरिया उससे हॉर्स के मसल्स पे किक करो, और तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट। हमें इस हॉर्स को वापस वहीं लेकर रखना है जहाँ से मैं लाया था, जब तक सब उठ नहीं जाते या जब तक लोग उठ ना जाएं उनका इंतज़ार मत करो, तुम लोगों के उठने से पहले ही फटाफट हॉर्स राइड कंप्लीट कर लो। आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड, देन इट बिगेन टू रन। तो आरम कह रहा है मैंने हॉर्स के मसल्स पे किक करा, और जैसे ही किक करा उसने अगेन अपनी नॉइस निकाली, स्नोरिंग करी, और वो भागने लगा। आई डिड नॉट नो what to do. Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dicron Halibian, where it began to leap over vines. तो वो कह रहा है कि then it began to run. हॉर्स ने भागना स्टार्ट करा, उसे नहीं पता था कि अब वो उसे क्या करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरीगेशन डिच, द हॉर्स रैन डाउन टू द रोड टू द वाइन यार्ड। अब हॉर्स को कहाँ राइड करना चाहिए था, उसके अकॉर्डिंग, आरम के अकॉर्डिंग हॉर्स को इरीगेशन डिच के वहाँ राइड करना चाहिए था, बट स्टिल वो हॉर्स जो है वो उसको वाइन यार्ड्स जो हैं हेलेबियन के वहाँ तक ले गया। वेर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, ताकि वो वहाँ पर जो वाइन्स वाला एरिया है वहाँ पर चला गया। The horse leaped over 7 vines before I fell, then it continued running. जो घोड़ा है वो वहाँ पर जो है वो 7 जो वाइन्स की जो बेलें थी उनके ऊपर उसने बेलों के ऊपर छलांग लगाई, और आरम के गिरने से पहले उसने दौड़ना चालू रखा। माई कज़न मुरैद केम रनिंग डाउन द रोड, और भागता भागता मुरैद भी वहीं आ गया। आई एम नॉट वरिड अबाउट यू, ही शाउटेड, वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स। तो मुरैद कहता है मैं तुम्हारे बारे में चिंता नहीं कर रहा हूँ कि तुम गिर रहे हो या तुम्हें चोट आ गई है, बल्कि मैं तो घोड़े के बारे में चिंता कर रहा हूँ। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, आई विल बी नियर। तुम इस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ, और उससे बिल्कुल प्यार से रहना, आई विल बी नियर, मैं आस पास ही रहूँगा।
I continued down the road and my cousin Muraid went across the field toward the irrigation. वो रोड पर ही रहा और मुरेद जो है वो फील्ड्स की तरफ गया, इरिगेशन डिच की तरफ गया. It took me half an hour to find the horse and bring him back. उन लोगों को हाफ एन आवर लग गया हॉर्स को ढूंढने में और उसे वापस लाने में. ऑल राइट ही सेड, जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ. तो वो कहता है मुरेद कि अब तुम मेरे ऊपर जंप कर लो बिकॉज सुबह हो गई है मॉर्निंग में और अब सभी लोग उठने वाले होंगे. वॉट वी विल डू, आई सेड. आरम मुरेद से पूछता है कि अब हम क्या करेंगे. वेल ही सेड, वी विल बी ईदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग. या तो हम इसे वापस छोड़ देंगे या हम इसे छुपा कर रखेंगे कल सुबह तक. He didn't sound worried and I knew he do hide him, not take him back, not for a while at any rate. तो आरन को ये बात पता थी कि उसका जो भाई है वो ज़रा सा भी वर्रिड नहीं लग रहा है और वो उस हॉर्स को फाइनली छुपाने नहीं वाला है, किसी को देने नहीं वाला है, वो तो उसको फाइनली छुपाने ही वाला है. बिकॉज वो हॉर्स से कितना प्यार करता है या कितना हॉर्स को पसंद करता है ये उसे पता था. वेयर वी विल हाइड हिम, आई सेड. तो आरम ने पूछा हम इस घोड़े को कहाँ छुपाएंगे. आई नो अ प्लेस, ही सेड. तो उसने कहा कि मुझे एक जगह पता है. हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड. तो आरम पूछता है कितने टाइम तक तुम इस चीज़ को छुपा पाओगे. कोई ये छोटी सी चीज़ नहीं है. इट्स लाइक ये एक हॉर्स है, वो भी जिंदा चीज़ है जो जीवित है, आप उसे इतने टाइम नहीं छुपा सकते. इट सडनली डॉन्ड ऑन मी and that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. तो उसने उसकी तरफ थोड़ा सा वैसे मतलब गुस्से से देखा. He had been talking these early morning rides for some time and had come फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड. और उसने आपस में दोनों ने बातें करी बिकॉज उसे भी पता था, आरम को भी और मुरैद को भी पता था कि उन दोनों को ही हॉर्स राइड जो है वो कितनी ज़्यादा पसंद है और वो लोग कितना ज़्यादा इच्छा करते थे कि उन्हें ये हॉर्स राइड करनी है. Who said anything about stealing a horse? He said. वो कह रहा है कि घोड़े की चोरी के बारे में किसी ने कुछ कहा, ऐसा उसने पूछा उससे. Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? तो उसने कहा कि जो भी हो, मैंने तुमसे सिर्फ इतना पूछा है कि तुमने रोज़ाना सुबह की यह घुड़सवारी जो है या घोड़े को ये सवारी तुम ले रहे हो, ये कितने समय पहले तुमने स्टार्ट कर दिया. ऐसा आरम मुरेद से पूछ रहा है. नाउ स्टूडेंट विल स्टार्ट आ न्यू पेज in our new video. So thank you all.